Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. In this video, we are going to discuss important questions for the December 2024 UGC NET examination. So we are going to continue the series for the previous year explanation. So in this series, we are going to cover the questions as well as expected questions on these topics. So do watch the video till the end. So the first question I have taken from the database management system. Which of the following command can be used to modify data in the SQL table? So the options are insert, update, delete and select. And you are supposed to select the correct answer from the given options. Now, the first thing how you are supposed to solve the question. पहले अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सो हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट. So the question is, which of the following command can be used to modify the data in an SQL table? So it is asking you about the modification of data. तो पहला पॉइंट ये आपको समझना है. This question is related to the DML, that is data manipulation language. अब अगर आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात करें, सो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट all are the four options for data manipulation language. and ये already आपके previous year question में UGC नेट में या कोई different examinations में पूछा हुआ question है, correct? but अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यू हैव नॉट गॉट ऑल द ऑप्शंस फॉर ऑल द फोर. तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा एंड इन द कंफ्यूजन आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे. तो ऐसा नहीं करना है. क्वेश्चन को दोबारा पढ़े एग्जामिनेशन में. So they are asking you which of the following command can be used to modify data. Again, डेटा की मॉडिफिकेशन की बात है. सो वी नो इंसर्ट. इंसर्ट क्या करेगा, इफ इन माई टेबल आई एम हैविंग टू रिकॉर्ड्स और अगर आप एक और इंसर्ट कमांड ले रहे हैं देन इट विल बी एडिंग वन मोर. तो यहाँ पे आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा, दैट इज डेटा विल बी मॉडिफाइड. देन डिलीट एंड अपडेट. अगेन इफ देयर इज एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जैसे मेरा नाम रश्मि है, इफ आई वॉन्ट टू एड रश्मि प्रभा, देन सेम रिकॉर्ड को मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज डिलीट? If I want to delete the records Rashmi Prabha, then in the delete query, I can delete the data. So insert, update and delete. So these are the three important commands which are used to modify the data. So अगर आप options देखेंगे, we are having A, B, C as the correct answer. Now select की बात करें, select is your DML command. इसमें कोई शक नहीं है. बट सेलेक्ट बेसिकली आपको रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने में मदद करेगा. सो इट विल नॉट मॉडिफाई एनी डेटा. सो द करेक्ट आंसर इज ABC एंड NTNAB का करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4. तो इस तरीके से जो भी एस्पिरेंट्स नेक्स्ट एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को आप जरूर एनालाइज करें. अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए करेक्ट करना है. So this was the question, correct? So this was the question which was asked in December 2024. Now, we will quickly go through and check all the SQL commands which are very important for your upcoming next examination. So, first one is DDL, that is Data Definition Language, DQL, Data Query Language, DML, Data Manipulation Language, DCL, Data Control Language, and TCL, Transaction Control Language. कई सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, दे आर जस्ट गोइंग एंड स्टडिंग DDL एंड DML कमांड. ये तो वो पढ़ते भी नहीं है, तो आपको ये पढ़ना है. इसका फुल फॉर्म अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द UGC नेट एग्जामिनेशन एज वेल एज एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. सो प्रॉपरली फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए. Now, let us quickly see what are the commands which comes under the category of data definition language. तो अगर आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखेंगे, so in the case of data definition language, we are having various commands like create, drop, alter, truncate and so on. तो इन द एग्जामिनेशन सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको ये भी याद होना चाहिए what are the commands which are the part of DDL: create, drop, alter, truncate, comment and rename. कई बार एग्जामिनेशन में यही आपसे पूछ लेते हैं. दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस एंड यू आर सपोज टू सेलेक्ट कौन सा कमांड है, कौन सा कमांड नहीं है. वो क्या करता है इसके बारे में तो बात की बात है, पहले तो आपको ये चार्ट ही याद होना चाहिए. नाउ व्हेन आई से क्रिएट कमांड, अगेन नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इज यू आर सपोज टू नो द सिंटेक्स फॉर ऑल द कमांड, बिकॉज आपको कई बार कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में दे विल बी गिविंग यू
द क्वेरी एंड यू आर सपोज टू चेक वेदर द क्वेरी इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इस तरीके से सिंटेक्स पता होना चाहिए। क्रिएट कमांड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द डेटाबेस एज वेल एज क्रिएटिंग द टेबल। दोनों के लिए आप क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। सो दिस सिंटेक्स हैज गिवन फॉर द टेबल कमांड, ओके, क्रिएट टेबल, देन द टेबल नेम फॉलोड बाय योर कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज द ड्रॉप कमांड। सो अगर आपने टेबल क्रिएट किया है, इफ यू डोंट वांट द टेबल, तो आप पूरे पूरे स्ट्रक्चर को ड्रॉप करेंगे। सो दैट इज ड्रॉप। अगेन यू शुड बी नोइंग ड्रॉप और डिलीट में फर्क है। ठीक है, ड्रॉप और डिलीट में फर्क है। ड्रॉप कमांड इज द पार्ट ऑफ डीडीएल एंड डिलीट कमांड इज द पार्ट ऑफ डीएमएल। सो अगेन दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ड्रॉप की बात करेंगे, सिंपली ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, so that object will be deleted from the database. Now if I want to modify again structure of the database, so how I am going to modify the structure? That is alter command. Alter table, you will add your table name, किस टेबल को alter करना है, क्या ऐड करना है या क्या ड्रॉप करना है, आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अगेन there is a difference between alter and update command. अपडेट कमांड सिर्फ रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगा, दैट इज रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगा, एंड अगेन दैट इज डीएमएल कमांड। बट ऑल्टर विल मॉडिफाई द स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर? ये मेरा एक टेबल है जिसमें मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बना दिया। आई वॉन्ट टू एड मोर कॉलम, सो फॉर दिस आई विल यूज ऑल्टर कमांड। अपडेट नहीं, अगर मैंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं, अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में मुझे कुछ अपडेट करना है, then I will be using update command. So again you should be knowing the difference between DDL and DML command. Truncate की बात करें, अगेन ट्रंकेट क्या करेगा, ये रिमूव करेगा सारे रिकॉर्ड को इंक्लूडिंग योर स्पेसेस फॉर द रिकॉर्ड्स दैट हैज बीन रिमूव्ड। कभी कभी क्या होता है, जब आप अपडेट कमांड को फायर करेंगे तो कुछ स्पेसेस रह जाते हैं, उस स्पेसेस को, सारे रिकॉर्ड्स को ड्रॉप करने के लिए वी आर यूजिंग ट्रंकेट कमांड। Again, this is very important because directly if you are a student of BSc Computer Science, BSc IT और BTech, तो आपको इंटरव्यू में एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप MySQL कमांड लाइन का यूज करें, सीखें, प्रैक्टिस करें और समझें, सो दैट यू कैन क्लियरली गिव द आंसर्स इन योर इंटरव्यू। Next is the comment command. So comment is basically to provide a comment to the data dictionary when we are having a physical design of a database. तो उस टाइम पे हमें हर एक टेबल का, स्ट्रक्चर का डेफिनेशन प्रोवाइड करना होता है, एंड वी आर हैविंग डेटा डिक्शनरी जहां पे आप कंप्लीट एक डिटेल्स को मेंटेन करते हैं। तो देन वी आर सपोज टू प्रोवाइड अ कमेंट विच इज यूज्ड फॉर टू अंडरस्टैंड कि वेदर ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर stored in the data dictionary. For that we are using comment. Now again rename is very 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 important question. Recently examination में ये देखा गया है कि rename आपको multiple choice questions में पूछा गया है, so that syntax is very important. Rename table, old table, then to is the clause and then new table. जैसे अगर मुझे rename करना है customer table को with cust table को with customer, देन फर्स्ट आई विल राइट कस्ट, देन टू एंड देन कस्टमर। तो आपको सिंटेक्स जरूर याद होना चाहिए। तो बेसिकली वी आर हैविंग 3 to 6 कमांड्स विच आर द पार्ट ऑफ डीडीएल कमांड। तो आप एक बार अपने एंड से भी देखें, अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर ऐड कर लें इन सारे कमांड्स को। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। Now see, data query language is a select command. Okay, it is used to retrieve the data from the database, and simply we write select column names from table, and if you want a specific record तो आप where clause का use करेंगे। अगर सारे records चाहिए then we are having select start. So you are supposed to practice all the SQL command. Now next is a data manipulation language which we are using generally for all the updation work. So manipulate, so that was the question. सी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो बेसिकली हम ये 3 ही कमांड याद रखते हैं। तो आप याद रखेंगे डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आपका सेलेक्ट भी आता है, ऑल्दो इट इज DQL, बट स्टिल एग्जाम में पूछा हुआ है तो आप उसको DML में ही इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर अपडेट, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था अपडेटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में, तो दैट इज इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इंसर्ट वी विल यूज टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इनटू द टेबल। अगेन इंसर्ट के 2 सिंटेक्स होते हैं, हाउ यू कैन इंसर्ट 1 सिंगल रिकॉर्ड और मल्टीपल रिकॉर्ड्स। इस पे भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा है सिंटेक्स पे, सो दैट इज इंपॉर्टेंट।
जैसे आपको यहाँ पे देखो, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स में इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, आप यहाँ पे कॉलम्स का नाम डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। अगर आपको सारे टेबल के स्ट्रक्चर में इंसर्ट करना है, देन देर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम आफ्टर टेबल नेम। तो इस तरीके से आपको सिंटेक्स मालूम होना चाहिए। अगर अपडेट की बात करें, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अपडेट टेबल नेम एंड देन वी आर हैविंग सेट टू सेट द वैल्यू। ओके, सो सिंटेक्स इज इंपॉर्टेंट। किसको सेट करना है? तो जो भी कॉलम है उस कॉलम में किस वैल्यू को सेट करना है, एंड यू आर सपोज टू प्रोवाइड वेयर कंडीशन। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा। सो बी वेरी कॉन्शियस व्हेन यू आर यूजिंग अपडेट एंड डिलीट कमांड। अगेन डिलीट में अगर आप वेयर क्लॉज नहीं देंगे, देन वो एक साथ सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा। सो व्हेन वी आर इन आईटी इंडस्ट्री, तो डिलीट और अपडेट हमें बहुत ध्यान से एग्जीक्यूट करना होता है, बिकॉज वी डोंट वांट एनी थिंग्स टू बी डन मिस्टेकली जो बहुत ज्यादा कॉस्ट को भी इफेक्ट करे। तो अपडेट एंड डिलीट का डबल कंफर्मेशन देखा जाता है जब आप ऑनलाइन काम करते हैं किसी भी आईटी इंडस्ट्रीज वगैरह में। Now log, call, explain, plan. So these all are again your DML command. इसके ज्यादा यूजेस नहीं आते हैं एग्जामिनेशन में, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए log, call and explain, plan are the DML command. So I have written here the explanation with the syntax. So go through it. Next is your data control language. As the name itself say, grant and revoke. Okay, grant का मतलब है प्रिविलेज देना। जैसे अगर मैं एक एडमिन हूं, अगर जैसे मैं एक एडमिन हूं, तो एडमिन क्या करेगा? वो किसी को ग्रांट करेगा परमिशन, या फिर किसी को रिवोक करेगा। बिकॉज इफ आई एम एडमिन, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ऑल द राइट्स, करेक्ट? तो ग्रांट करना है प्रिविलेज या फिर रिवोक करना है। इफ आई एम हैविंग मल्टीपल यूजर्स एंड ऑल द यूजर्स आर वर्किंग ऑन सेम डेटाबेस, तो मैं सबको सब राइट्स तो नहीं दूंगी। सो दैट इज वाई वी आर हैविंग डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज ग्रांट एंड रिवोक। Next, we are having transaction control languages. Begin transaction, commit, rollback, save point. Now in the examination, hardly they are asking you DML and DDL command. नए कमांड्स पूछ रहे हैं, तो ये कमांड्स आपको पता होना चाहिए। What is the meaning of commit? So if you want to save all the data permanently in the database, so that is your commit. Rollback का ये मतलब है, अगर आपका ट्रांजेक्शन फेलियर हुआ, देन आप पूरे पूरे ट्रांजेक्शन को फिर से रोल बैक कर देंगे टू अपडेट द प्रीवियस स्टेटस। सो दैट इज रोल बैक। सेव पॉइंट का ये मतलब है कि आपको एक कंप्लीट टास्क परफॉर्म करना था, आपको पता है आई हैव डन लॉट्स ऑफ स्टेप्स आर करेक्ट, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने ट्रांजेक्शन को सेव कर दिया, तो दैट इज द सेव पॉइंट। अगेन ट्रांजेक्शन्स को बिगिन करना है, देन वी आर हैविंग बिगिन ट्रांजेक्शन एज द command. So these were the 5 important categories of various different types of languages that we use in MySQL. Data definition, data query, DML, DCL and TCL. सबका आपको याद होना चाहिए explanation. Now in this same video, जैसा मैंने आपको नाम बताया और जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, the name is combine CS the extra step. इस एक वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको जितने भी कमांड्स हम बेसिकली यूज करते हैं MySQL का, सबका एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दे। सो दिस इज ऑल्सो योर लास्ट मिनट रिविजन नोट्स। सो क्विकली वी विल सी व्हाट इज सेलेक्ट। सो सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मोर देन one table. So select command is used to retrieve data from more than one table. Insert is used to add new rows, that is record. Update is used to modify existing data. Delete is used to remove the specific row. Create table, it will create a new table. Alter table, again it will modify the structure of existing table. Either you can remove or you can add. Drop table will permanently delete the table. Truncate, remove all the rows from the table but keeps the structure intact. Very important, that is the basic difference between drop and truncate. ड्रॉप में क्या होता है, आपका पूरा पूरा स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा, है ना, मतलब पूरी इसकी एग्जिस्टेंस चली जाएगी। बट ट्रंकेट क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को वो रिमूव करेगा बट वो स्ट्रक्चर को कीप करेगा, है ना। मे बी कि आपको सारे मतलब डेटा नहीं चाहिए बट आपको स्ट्रक्चर चाहिए, सो दैट यू कैन यूज इट लेटर ऑन। तो फॉर दैट यू विल यूज ट्रंकेट। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट। अगर हम डिलीट की बात करें, तो डिलीट का स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा। एंड दैट आर द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट। वेयर की बात करें, वेयर इज यूज फॉर फिल्टरेशन, है ना, मतलब किसी स्पेसिफिक अगर आपको डेटा में चेंजेस करना है, देन यू विल यूज वेयर क्लॉज।
Order by, again very important. Order by, to arrange your data into proper order, either ascending or descending. अगेन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर डिफॉल्ट की बात करें तो ऑर्डर बाय असेंडिंग होता है। जब आप क्वेरी में लिखते हैं तो वी आर राइटिंग ASC और DSC। तो अगर आप ये चार कीवर्ड्स भी लिखेंगे देन ऑल्सो आपका ऑर्डर बाय एग्जीक्यूट होगा। ग्रुप बाय, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। ना इफ आई वांट टू सी कि न्यू दिल्ली में एक पर्टिकुलर रीजन में कितना सेल्स हो रहा है, तो हम ग्रुप कर देंगे उस पर्टिकुलर एरिया को। तो ग्रुप बाय क्या करेगा, एक जैसे जो मिलते रिकॉर्ड्स है उसको ग्रुप करने की कोशिश करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज। ऑलवेज ग्रुप बाय को हम फॉलो करते हैं हैविंग से, दैट इज अगर मुझे कुछ कंडीशन भी लगाना है ग्रुप बाय के साथ तो ऑलवेज रिमेंबर आप वेयर क्लॉज यूज नहीं करेंगे ग्रुप बाय के साथ। ग्रुप बाय के साथ अगर कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करना है उसके लिए आपको हैविंग क्लॉज होता है। याद करने का यही तरीका है कि आपको पता है ABCD में वी आर हैविंग G, देन वी आर हैविंग H। तो कभी कभी जब सिंटेक्स की बात करते हैं तो आपको ऐसे भी पूछ लेते हैं, बट दिस इज द रॉन्ग। पहले ग्रुप बाय आएगा, फिर कॉलम जिस पे ग्रुप करना है, एंड देन फिर आप हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे। अगेन मैं एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता दूं, ग्रुप बाय के साथ आप जो भी यहाँ पे कॉलम यूज करेंगे दैट कॉलम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेलेक्ट। ये भी एक सिंटेक्स का रूल है ना। ग्रुप बाय अगर मैंने बोला यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस है तो अगेन सेलेक्ट में वो स्टूडेंट का एड्रेस होना चाहिए, अदरवाइज दैट क्वेरी विल नॉट एग्जीक्यूट। और ऑलरेडी ये सारे नेट के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। अगेन फॉर इम्पॉर्टेंट इज योर ज्वाइन। ज्वाइन पे भी कई बार UGC नेट में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, किस तरीके से सब में डिफरेंसेस हैं, इनके सिंटेक्स मालूम होना चाहिए। सो यू आर गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम ज्वाइन। नाउ अगेन डिस्टिंक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना इफ आई वांट टू हैव ओनली यूनिक रिकॉर्ड, जैसे मैंने बोला मेरी क्लास में दो स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट का नाम आदित्य है, सिर्फ आदित्य है, करेक्ट। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी इस आदित्य के कितने परसेंटेज आए और इस आदित्य के कैसे परसेंटेज आए, कितने परसेंटेज आए। फॉर दैट आई नीड अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। तो मैं क्या करूंगी, इससे बचने के लिए मैं एक यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लॉज लगाऊंगी जो मुझे ये बताएगा आउट ऑफ ऑल द आदित्य, वो सिर्फ मुझे एक ही आदित्य का एज अ रिकॉर्ड देगा कि ठीक है इस सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट इज अ यूनिक रिकॉर्ड। सो इट रिमूव्स द डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द रिजल्ट सेट। सो डिस्टिंक्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यूनियन की बात करें, अगेन आपको जब मल्टीपल क्वेरीज, दैट इज इफ यू आर वर्किंग ऑन सब क्वेरी, तो अगर आपको कई सारे क्वेरी को कंबाइन करना है देन यू विल यूज द यूनियन कमांड। Grant and revoke we have seen. To grant a permission, to revoke a privilege, commit to save all the changes made in the current transaction. Again, rollback. If something goes wrong, we will undo all the changes. Save point, it sets a point in the transaction to roll back if needed. So in this video, मैं अपने तरफ से मैंने एक क्वेश्चन उठाया दैट वाज आस्क्ड इन दिसंबर 2024, और उस एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको इस टॉपिक के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन पॉइंट बता दिया, और साथ में आपको ये भी बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस ड्राफ्ट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। क्या क्या मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताया, आपको सारे कमांड्स पता होना चाहिए, DDL, DML, DCL एंड सो ऑन। किस कमांड में लाइक DDL में क्या क्या आता है वो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन 3 मैंने बताया जो भी आपके कमांड्स होते हैं उस कमांड्स का आपको सिंटेक्स जरूर पता होना चाहिए एंड इट्स यूज, ओके। बिकॉज एवरी टाइम यू आर गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम SQL, मतलब SQL एक ऐसा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। आइदर आप नेट लिखिए, सेट लिखिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस करिए, इवन आप PhD एंट्रेंस के लिए जाइए, या फिर अगर ये वीडियो कोई स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं तो उनके भी एग्जामिनेशन के लिए SQL के बेसिक कमांड्स आपको जरूर आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। नाउ देयर इज वन मोर अपडेट। अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको MySQL सीखना है तो प्लीज गो एंड वॉच द कोर्स डिटेल ऑन आवर वेबसाइट, that is www.combinecs.com. So we are also running our YouTube channel and online offline classes चलती हैं। तो अगर आपको MySQL सीखना है तो आप MySQL के लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसा भी आपका इंक्वायरी हो या आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी।
इस वीडियो में इतना ही रखेंगे. इफ यू आर न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and hit the bell icon for all the upcoming videos, and do share this video with your friends as well. Thank you so much for watching the video.